So, hi guys, welcome to Earpedia Education. So today in this interaction, we are going to have discussion with Mr. Utpal Kant. So Utpal is recently selected finally for HPCL and he's from engineering background, electrical engineering background. So first of all, congratulations Utpal, Thank you, sir. and thanks for sparing few minutes with us so that you can share your journey, because there are many people who are right now in the same boat in which you were at one time, right? When you're Yes, preparing for the exam. Okay. So yes, sir. before moving ahead, Utpal, I want to know about your background, from where you did your schooling and your BTech, and how this journey go. Sir, my name is Utpal Kant Kumar. I did my matriculation from Bokaro, Jharkhand. Then after I did my intermediate in Ranchi, Ranchi, Jharkhand. Okay. Then I joined Gaya College of Engineering, Gaya for BTech. I done my BTech in electrical and electronics engineering in the session 16 to 2020. Okay. Then I started preparing for PSU's exam. I wrote many PSU's exams, sir, like HL. Uh, in So this, you mean to say you start writing PSU's exam once you get graduated, right? yes, yes, sir. So was it already planned from your graduation that you want to join only PSUs, Yes, either sir. because the campus placement in college were not good, because of that you decided to go, because most of the students have one opportunity, that is GATE exam also. Have you Yes, taken also GATE exam? yes, sir. Sir, GATE exam is there, but to get PSU through GATE, we have to score more marks. But in my case, I'm not getting that much marks. That's why I filled PSU's exam. Like Right, right, like HL, BARC I write, right, right. and HL. Many exams are HPCL. I wrote two times. Like first time I couldn't qualify the cutoff in CBT, but this time I I get This selected. is really a great point, Utpal, and great learning curve for many students out there who are doing and who are fighting with the competition, because job market in India is quite competitive, right? So if you Yes, believe you have prepared really well for the GATE exam and you are not able to crack that your desired position, then you can also look into other exam also. As you told, BARC is there, HL is there, HPCL, and many others are there who used to conduct their separate exam, right? So yes, GATE, sir. how many times you wrote GATE exam? So three times. Okay, so what was your best rank? So best rank I got 6,000 something, 6,000, sir. So it's a great achievement, yeah, by getting 6,000 rank in GATE, and you're getting one of the, greatest PSUs to work with, right? So Yes. mindset kaisa tha? How was your mindset, when you were not getting good rank in the GATE exam and ultimately you were looking that somehow you need to get that position? तो उस टाइम क्या दिमाग में चल रहा था? सर मेरा ये था कि जब ये लोग गेट के थ्रू तो पीएसयू लेते ही थे, और एक तो पीएसयू खुद का एग्जाम लेती थी, तो उस पे मेरा था कि इधर से, और उनका सिलेबस भी इनसे मतलब उन नॉन टेक और टेक्निकल दोनों रहते थे, Okay, तो मेरे को लगता था कि इधर से थोड़ा आसान होगा, तो वो okay, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहा था। और मेरे माइंड में एमटेक करने का कुछ ऐसा था नहीं पहले से, right, right, right. तो जॉब चाहिए था, तो मैं प्रिपेयर कर रहा था। वही Okay. नॉन टेक टेक वाला पार्ट पढ़ता था, इंग्लिश वगैरह, रीजनिंग, तो वही करता था और ज्यादा अभी फोकस रखता था। अभी मैं बात कर रहा हूँ, देखो आपने बताया कि नॉन टेक पे आप ज्यादा फोकस करते थे, कि आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिया था, हैव यू आइडेंटिफाइड योर वीकनेस की दीज आर माय वीकनेसेस? सर टेक्निकल तो मेरा पढ़ते पढ़ते सैचुरेट हो रखा था कि इससे ज्यादा मतलब टेक्निकल और ज्यादा हो नहीं रहा, तो अब मैं नॉन टेक पे अब ध्यान देना लग गया था। उधर ओके, के पार्ट को थोड़ा अच्छा किया, तो उस हिसाब से मेरा मतलब अच्छा होता रहा। और ओके, जेई जेई वगैरह का एग्जाम भी का सेट वगैरह करता था, ओके। उससे तो आई अच्छा। गेस दिस इज योर फर्स्ट जॉब, राइट? एचपीसीएल आपका पहला जॉब है बीटेक के बाद? यस सर। सो यू आर लकी इनफ कि आपका जो पहला ही जॉब है वो पीएसयूज के साथ स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो यस अभी सर। देखो, देर आर मेनी स्टेजेस फॉर सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन, राइट? व्हेन यू आर गेटिंग सिलेक्टेड फाइनली, देर आर मेनी स्टेजेस यू नीड टू अंडरगो. द वेरी यस सर। फर्स्ट is written exam, that you told that you have prepared technically whatever you prepared for the GATE exam, and side by you keep on preparing for the English and other non-technical stuff, right? So that is the first step. The second stage is very crucial stage for the filter student, that is PI and GT stage. So how यस you सर। prepared for those? Reason being, as you know, most of the engineering students have problem. They are not much comfortable with GD and GT, right?
they might be Yes. quite good in the technical subject. What when it comes to the GD and GT, so there is a fear factor for most of the people. So when you got this news that you are selected for the second stage, then how you started the journey for the second stage? सर सेकंड स्टेज में जब मैं आया तो मुझे पता चला कि ये यूरोपीडिया का वो प्रिपेयर करवाते हैं, तो मैंने ज्वाइन किया इंस्टेंटली। जैसे रिजल्ट आया वैसे ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने कभी जीटी और पीआई कहीं दिया नहीं था, ये फर्स्ट ही सब कुछ था मेरा। सीबीटी बहुत लिखे थे बट जीटी पीआई तक पहुंचा ही नहीं था। तो जीटी में वहां पे मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप में जो करवाते थे सर, तो उसमें ये बहुत अच्छा, मतलब ये सर बोलते थे कि सबको बोलना है वहां पे, लेकिन ये भी पता होना चाहिए होता है कि मतलब कब बोलना है। राइट राइट। तो और मेरे ओरिजिनल जब मैं कर रहा था वहां, तो वहां भी मैं बहुत कम बोल पाया था, मतलब लोग थोड़ा डोमिनेट कर रहे थे, तो मैं बहुत कम बोल पाया, लेकिन मैं बहुत अच्छा पॉइंट दिया तो मेरा हो गया। ओके तो सी, वो सब मैं सीखा कि मतलब आप किस तरह के पर्सनैलिटी थे उत्पल? आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं, राइट? हर बंदा अपने आप को अच्छे से जानता है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू वर व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जीटी? ऐसे काइंड के पर्सनैलिटी की जिसको फियर रहता था कि नहीं यार मैं कैसे बोल पाऊंगा, या इस काइंड के पर्सनैलिटी की हाँ मैं बोल दूंगा बट मुझे कोई गाइड कर ले बस? किस काइंड के ये पर्सनैलिटी थे आप? मैं बोल सकता था बट मेरे को गाइडेंस चाहिए, क्योंकि जब मैं जीटीएस स्टार्ट करता था तो मैं किसी को क्रॉस करना नहीं चाहता था। सर भी बोलते थे, मतलब शुरुआत में ही मेरे में इनर्शिया ज्यादा था, मैं लोगों को बोलने देता था बट टाइम कम पड़ जाता था। तो सर ने मुझे गाइड किया कि नहीं, आपको बोलना है, आपको ऐसा करके अपना टाइम निकाल के बोलना, वरना आप बोल ही नहीं पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने बहुत सारे जीटी प्रैक्टिस किए लोगों के साथ, राइट। ओके। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो उससे मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ सर, ग्रेट इनर्शिया। ग्रेट। यस सर। ओके, सो पीआई का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? पीआई सर, वो जीटी में जो सब कुछ हुआ वही पीआई में थोड़ा चला, मतलब 50% वही था। सर ओके ने पीआई पैनल मेंबर पूछे हमसे कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता तो आपको गुस्सा आ रहा था क्या, ऐसा करके सर। ओके तो तब भी उसका जवाब मैं दिया कि सर गुस्सा आ रहा था, मतलब नॉर्मल, कि इतने दिन से क्या कर रहे थे, ओके। क्या चल रहा था, ऐसा करके। तो बस सर कितना इतना देर ही। चला आपका इंटरव्यू टोटल? सर इंटरव्यू 10 to 15 मिनट्स। तो क्या मतलब टोटली उन्होंने टेक्निकल की तरफ डिस्कशन करा या नॉन टेक और टेक्निकल बोथ कंबाइंड वर देयर? टेक्निकल के एक क्वेश्चन पूछे बहुत बेसिक, एक दो क्वेश्चन पूछे बहुत बेसिक, बहुत बेसिक एकदम। ओके और फिर बहुत सारे बिहेवियर से क्वेश्चन पूछे, गुस्सा आता है किस चीज में, मतलब अच्छा तुम्हें फील होता है, ये सब सर। और कुछ लोगों ने और उनमें से एक ये पूछे कि तुम्हें अगर एचपीसीएल नहीं मिला तो फिर क्या करोगे, ओके ये था सर। तो उसमें मैंने बोला कि सर फिर से क्योंकि मैंने पिछले बार भी लिखा था एचपीसीएल, ओके तो उसमें मैं बोला कि सर एक बार और ट्राई करूंगा, क्योंकि जॉब चाहिए मेरे को, जॉब ही के लिए तैयारी कर रहा था। ओके। तो आप आते हो गया से, गया आपका होम टाउन है, राइट? हाँ सर, मेरा पटना डिस्ट्रिक्ट होम टाउन है। ओके, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फादर इज इनटू सर्विस और व्हाट? नो सर, फादर एग्रीकल्चर से हैं, फार्मर हैं। ओके, फार्मर है। तो यार अभी तो पेरेंट्स में सब लोग हैप्पी होंगे कि एक बहुत अच्छा पोजीशन मिल गया है, नाउ देयर चाइल्ड इज सक्सेसफुल एंड ही विल कीप ऑन अचीविंग न्यू थिंग्स अहेड, राइट? यस सर। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु लीव द preparation because they attempt once, twice, thrice some exams and they believe, they start doing their self evaluation that we are not capable, might be these exam are not for us. I believe you were sometime at the same stage, right? कि आप पेपर लिख रहे थे, you were not getting that much success in the exam. So what is the message basically throughout your journey you have experienced, and the message you want to give those students that don't lose hope, stay motivated, the things will work definitely for you as well in the life? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी द क्वेश्चन पैटर्न सर, कि कौन से एग्जाम में कैसे पैटर्न आ रहे हैं, उस पर फोकस बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि हम ये सोचेंगे कि टेक्निकल में 100% कर ले, तो वो 100% कभी नहीं होता है। Right, तो right. नॉन टेक को भी लेकर चलना है, और क्वेश्चन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें 85 का वेटेज था, तो इधर से भी 85 लाना है, उधर से 85, तो बहुत हेल्प हो जाता है। तो वो प्रैक्टिस करते थे सेट मार के, और क्वेश्चन पैटर्न देखते थे सर सारे Right, पीएसयू। right. जेई एग्जाम का भी बहुत सारा सेट मैंने मारा था, तो उससे मेरा टेक्निकल पार्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाला पार्ट अच्छा हो गया था। Okay. यस सर। तो स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे ब्रीफ में कि इन चीजों को खासकर ध्यान में रखो?
सर हैव पेशेंस, और पेशेंस होना चाहिए थोड़ा सा, और जल्दी मतलब जॉब अगर पीएसयू में काम करना है तो जल्दी का नहीं सोचना है कि कहीं भी कर लेंगे, क्योंकि कहीं भी करने से फिर इंजॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रगल एक साल 1.5 साल देना चाहिए कि अच्छा से, और हो जाता सर, बहुत लोगों का हो जाता है, किन्हीं किन्हीं का थोड़ा लेट होता, बट अगर पेशेंस से करेंगे, सही से करेंगे तो डेफिनेटली। अभी कहाँ पोस्टिंग है आपका, कहाँ पे अभी ट्रेनिंग चल रहा है, क्या चल रहा है? नो सर, अभी 8 अप्रैल को पुणे में है, मतलब ओके, सो ट्रेनिंग। अभी आप घर पे ही हो? हाँ यस सर, 8 Okay, अप्रैल। so thanks Utpal for sharing, your helpful insight with us, and we wish you all the best for your coming time. So we wish that you achieve lot more many success ahead and make your parent more prouder than, right? Okay. So thanks a lot, right? थैंक यू सर। Okay.